class you are in? Ma'am, 11th class. Wonderful, very nice. So only Anshika hasn't replied. Anshika, better if you could tell which class you are in. Ma'am, I Spika? read in class 5B. 5B, okay. So who is going to attend session with you today? Who's going Ma'am, to your attend the voice session is with not you? clear. My voice. Okay. Who is going to attend a session with you today? आपके साथ आज कौन है सेशन में? Okay, how many of you want me to give your parents a homework? आप में से कौन चाहते हैं कि मैं आपके पापा मम्मी को बहुत सारा होमवर्क दूं आज? शौर्य मुस्कुरा रहे। शौर्य, you want me to give homework to पापा मम्मी? No, ma'am. क्यों? Okay, Ishmeet, मम्मी पापा को होमवर्क Yes. देते हैं? Excuse me, let us start. We Sir can को start. close भी करना है. Let us start now. It's cool. All right. Dr. Arunkash, you can start. There is a query. I'm sending a link. So please start. Okay. Good afternoon, friends. It's a good opportunity to be with all of you to discuss common problems which we all are facing, which parents are facing, which children are facing. It's a difficult time during pandemic which has suddenly unannounced without any notice. One day it came to our door and we all were confined in four walls. We were told to be in home. The streets were deserted. चारों तरफ सन्नाटा आ गया। सड़कें जो पूरी आदमियों से भरी रहती थी, गाड़ियों से भरी रहती थी, पूरी खाली हो गई और हम सबको घर के अंदर रहना पड़ा। 2-3 महीने तो बहुत ही मुश्किल रहे। फिर धीरे धीरे चीजें खुली, धीरे धीरे बाहर आए। अभी स्कूल भी शुरू होने जा रहे हैं, ऑफिस सारे खुल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन परेशानी जिससे शुरू किए थे वो कहीं कम नहीं हुई। आज भी पेंडेमिक है, आज भी कोरोना है, आज भी खतरा उतना ही है, लेकिन घर के अंदर एक समय से ज्यादा रहना भी बहुत ही मुश्किल। तो हम लोगों ने ये सेशन किया, प्लान किया कि हम लोगों ने टीचर से तो बहुत डिस्कशन कर लिया, लेकिन पेरेंट्स की समस्याएं क्या हैं, पेरेंट्स को किस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं और उसमें हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव गैदर्ड टुडे टू jointly discuss some issues which we are facing. We have very limited time. It will not be possible to take all the issues today, but it is just beginning of a platform where we can discuss few things. We can start with something, and later on we can refine it further, which we can take it to next step, and then everyone can join in this forum and we do that. To formally start the session, we'll request Kirti Prakash ma'am to introduce our panelists officially, and then we can start the program after introduction.
Just please wait a second. I will be. Let it be a brief introduction. Yes, a very brief introduction. Kirtik, are you there? Can you listen us? Sir, I think Kirti ma'am was not there on the screen. I could not see. No. She is there with the PC. Why she is on the screen? Maybe some network problem. She is there. Then you can introduce. It's okay. Okay. We'll do Okay. ourselves. It's all right. Okay. Maybe that some network problems she is not able to join immediately. Okay. So reason is there to making future ready parents. Future is totally uncertain because we don't know what is going to come. It's totally unpredictable. But at the same time, there is a possibility of achieving something great by knowing, predicting, extrapolating. So for that, we have gathered today. We have a team of people with us. We have Dr. B. Singh, who is our mentor, who is our guiding force. He has been in the field of education since very long. He is the first recipient of CBSE National Award in 2000 when it was started. He is a qualified trainer with CBSE, Quality Circle of India. Urja Delhi is his company through which he is doing a lot of work in field of education. He is a CBSE helpline team. CBSE has a helpline where any child, any parent which needs immediate help, they can contact. So these people are always in a hotline. They can answer the questions. More than 42 years experience in the field of education. He has inspected 70 plus schools for CBSE affiliation. Go to next. It's okay enough. Okay. So he has Please been finish. in many Let us come places. to the main business. Okay. So I'll be there with you to discuss. I've been in field of education and principal of Flowers International School. And please stop sharing. Mannat Srivastava, please, thank you. Please, I'll request every one of you not to play with computers or your mobiles. Just please wait, listen, so that we can interact nicely with you, discuss with you. We have Ms. Rajendra Narula ma'am will be joining with us very soon. He is a very senior member from DAV team. At the moment, she is in USA. She was former headmistress. She has been Quality Circle of India for quite a long time. She has been audit director in academic audits and so many other things from DAV group. And now she is helping us in this way. And Deepti Singh is a mentor, counselor, qualified psychologist. She is taking care of a lot of children who are in distress, who need special help, who need, and then parents and children sessions she does private and through school sessions where a specific need of children are solved. She is doing PhD. She is gold medalist, and it's a pleasure to have her here to discuss with you all various aspects which are in the pandemic. So our plan will be like this: that we'll be discussing few things for our own. Then we'll take the questions which has been posed by the parents and some other questions when on the live which will be there. Whole program is live on YouTube also. So many parents, many people who are interested, they can just join through the YouTube. And in fact, all our programs will be on YouTube. People will be able to see, able to notice, able to participate in the program. So we'll request Dr. B. Singh sir to take it further and tell basic things which are needed during pandemic and how to cope up with various activities. Sir. Friends, great evening to everyone and thank you very much for joining. आप लोगों ने ज्वाइन किया सेशन, बहुत अच्छी बात है. हम बहुत सारे सेशन टीचर्स के साथ कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी कर रहे हैं. तो आज एक्सक्लूसिवली हमने सोचा कि पेरेंट्स से मिलना बहुत जरूरी है.
तो लिहाजा हम चाहेंगे कि आपसे और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिले। हमारा नेक्स्ट सेशन 21 नवंबर में होगा, 15 डेज के बाद, अगले सैटरडे को ही सेम टाइम पर। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आज रह जाते हैं जो आंसर नहीं हो पाते हैं, आप हमें लिखते रहिएगा, हम लोग आपको 21 नवंबर को भी उनके आंसर देंगे। सबको एक बार डॉक्टर म्यूट कर दें, डॉक्टर अनुपका से एक बार म्यूट कर दीजिए सब। और सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली there is echo sound coming. एक बार, हाँ। So friends, जैसा कि डॉक्टर अरुण प्रकाश ने कहा कि देखिए मार्च में ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन लगा और ये जो कोविड की बीमारी कोरोना की आई, हम कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं थे पूरा वर्ल्ड, तो बड़ा केओस, डिसऑर्डर और ये सब हुआ। परंतु बहुत जल्दी हम सब ने बहुत नई स्किल सीख ली। बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग तो शुरू हो ही गया है, लेकिन पेरेंट्स ने भी बड़े नए रोल सीखे। खास तौर से मदर्स ने आधे से ज्यादा रोल टीचरशिप का उन्होंने बड़े बखूबी से निभाना शुरू कर दिया है। सो हम उन सभी पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहेंगे। पहले देखिए टीचर्स पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, अब वो सारा पब्लिक डोमेन में पढ़ाते हैं, तो टीचर्स को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। पर दूसरा फायदा पेरेंट साइड में ये हुआ कि मदर्स को, पेरेंट्स को भी इंसाइट मिल रही है जो पढ़ाया जा रहा है उसका, वो भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो मदर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमने रिवाइवल सर्वाइवल तो कर लिया, हमें सेलिब्रेशन स्टेज पर पहुंचना है। इससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक है तो स्कूल भी रीओपन होने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल मंडे से ओपन हो रहे हैं। तो हमारे सामने 3-4 मेजर क्वेश्चंस होंगे इस वक्त दिमाग में। अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या प्री वर्क कराएं, कैसे उसको तैयार करें, कैसे मोटिवेट करें, उसके बैग में कौन सी स्पेशल किट होनी चाहिए, उस स्पेशल किट में मास्क, सैनिटाइजर ये तो होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा मास्क, एक्स्ट्रा सैनिटाइजर और एक्स्ट्रा सोप देकर ही हम भेजें। मार्केट का कोई खाना बाहर, जहां तक हो होममेड फूड ही लेकर हम बच्चे को साथ में भेजें। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा म्यूटेड रखिए सभी लोग। सो थैंक यू। सो हम ये सारे पॉइंट जितने हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक डायरी पे या कहीं आपके पास जो भी पैड है उस पर थोड़े नोट करते जाएं, और जब आपसे पूछा जाएगा तो उस वक्त अपने क्वेश्चंस भी आप जरूर बताइएगा। सो हमारे सामने यही चैलेंज है कि बच्चे को जब हम स्कूल भेज रहे हैं उसका टेम्परेचर हम नोट करें, स्कूल के साथ इसको शेयर करें, और पूरे मोटिवेशन के साथ, सेफ्टी के साथ बच्चे को हम स्कूल में ड्रॉप करें। जिन स्कूलों से बस प्रोवाइड की जा रही है दैट इज ओके। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये फैसिलिटी अभी नहीं स्टार्ट हो रही है, तो पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप द चाइल्ड। तो नेचुरली आप अपनी गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर से, जो भी आपके पास अरेंजमेंट है उससे छोड़ेंगे। एक दो चीजों का ध्यान रखें कि गाड़ी हमारी सैनिटाइज तो हो, लेकिन उसकी चाबी पर सैनिटाइजर नहीं हो। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुई हैं कि चाबी सैनिटाइज करने से कुछ इंसिडेंट्स हो गई हैं, तो इन बातों का भी हम ध्यान रखें। तो बच्चे का जो लर्निंग कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर है, और उसका रूम और पूरा हाउस, वहाँ मोटिवेशन की चीजें जिस फॉर्म में भी हो सकती हैं वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस वक्त और रोल हमारा आता है एज ए पेरेंट कि हम जो चेंज हमारे सामने आ रही है, ये एक नया न्यू नॉर्मल की सिचुएशन आई है स्कूल रीओपन होने से, उसमें हम अपना रोल बड़ा इफेक्टिवली प्ले कर पाए। सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेरेंट्स आपके माइंड में होंगे वो क्वेश्चंस आप जरूर पूछें। बच्चों को एंगेज करने के लिए एक तो क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि हम दीप्ति सिंह और मैम राजेंद्र नरूला भी ज्वाइन कर ली हैं, डॉक्टर अनु प्रकाश, हम सब लोग मिलकर आंसर करेंगे। परंतु एक दो चीजें मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि हम
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिनको हम टेकअप कर सकते हैं इस तरह के पैंडेमिक टाइम में। हमारे घर में बहुत सारी एल्बम्स पड़ी रहती हैं पुरानी, जो सालों सालों तक हम हाथ नहीं लगाते हैं, तो उनको निकाल कर हम एक नई एल्बम क्रिएट कर लें। हमारे जो पूरी फैमिलीज रही हैं, पुरानी जो जनरेशन्स हमारी हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को कई बार नहीं पता होता है हमारे रिलेशंस के बारे में भी। सो 2, 3, 4, 5 जनरेशन्स के लिए हम वंशावली चार्ट या उनकी कोई वीडियो या उनके कोई रेयर डायलॉग्स या उनके रेयर पिक्चर्स वो क्रिएट करके एक स्पेशल एल्बम बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। कोई नई स्किल हम सीखें, कुछ सिखाएं। बच्चे सीख सकते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स सीख सकते हैं बच्चों से। खासतौर से आईटी की स्किल्स कम आती हैं पेरेंट्स को, तो ये टाइम है कि जिसमें हम अपने आप को इस तरह से एनरिच करें, एम्पावर करें, हम अपने आप को अपग्रेड करें। तो ये रिलेशनशिप हो, फैमिली आवर हो, कुछ ऐसा टाइम हो, ऐसा कॉर्नर हो जहां सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को हम बंद करके 1 to 1 बात कर पाए। तो टाइम प्लेस इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको भी हम डायलॉग के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग। आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको टेकअप करेंगे। I'll request Dr. Arun Prakash, would you like to say something? Or we request Deepti Singh? स्पेशल स्टडी एरिया के ऊपर हम बात करेंगे भी थोड़ी देर में। Yes, sir. जी। So we'll take questions at the end. At this moment, we'll request Deepti if she can tell and discuss few things that mostly parents will be interested. Being a counselor, she understands the mood of parents and children. So she can discuss the things, and then we'll take the questions and we'll take some precautions. We'll try to, especially I will try to request with the parents what precautions they should take once children start going to school. So Deepti, please, if you can just start discussing with the parents and explaining them and their expectations. So Deepti, please. Deepti, are you there? Evening. Hello. Sir, I'm there. Can I just get back to you in 2 minutes? Okay, no problem. Yeah, Okay. 1 minute. So meanwhile, I'd like to discuss with the parents 2 seconds before we do. See, we all know that schools cannot remain closed for a very long time. Although personally, everyone feels if school remains closed for a longer time, it is safe for children. They can in home much nicely arranged and away from the problems that they face. But unfortunately, things are going to change when COVID has a still deep root all around. In fact, COVID has not reduced, maybe numbers may be reducing somewhere. But like we are talking to recently one of our colleague, Sarabjit Singh, her name you might have seen here. And so many other people, they are negative. They are tested negative, but they are having some symptoms. Recently, there was a sero survey done, which they took blood and some antibodies were studied. It was found many people were affected with the corona. They were treated. They were treated automatically, and now they are out of this. They never noticed that they had COVID. But two problems are there in between. When they had COVID, they were passing on to others because they were not knowing that they are the carrier. Second thing, this COVID is affecting what organs, where it has affected, that has not still studied. So we feel its success rate is very high. Most of the people are free. They are not facing any problem. But what problem may come in future, we don't know. So we cannot take it lightly. It has to be taken very seriously. Now schools are opening. 9 to 12 has been told to open. Online classes will continue along with offline classes.
basically they are being called to clear their doubts, that too with parent consent. So government has made it mandatory that written consent from the parents should be there in the school that parent want to send. Now, what should be parents' concern before deciding to send the child or to think whether to send or not? What to do? First, you have to see the immunity of the child. If child is getting cough and cold very often, if he goes little take ice cream, goes outside, little exposure, he gets cough and cold, fever, means immunity level is less. If you have proven, you have seen someone is asthmatic, something, so maybe you can consult your doctor and then you decide to send it. So that decision only you can take with the vulnerability of the child. Because we'll come back a little later, because most of the things which school will do during this time will be repeated online also. And most of the things will be even one-to-one sessions. Many schools are planning one-to-one session with the children where problems can be solved by one also. So that also schools will do very soon. So that will help many of the children to clear that out. So one thing, take very serious discussion with your doctor also, with that you want to send them to school or not. Secondly, please notice children are not having that much resistance with the diseases as elders may have for two reasons. Adults are exposed to different situations outside. You are going office, you are going to shop, you are going to different places where you're meeting more people. You might be having some immunity developed, but children are in very protected environment. So when they are in protected environment, when they are going to school, every school has a set of rules which has been given by CBSE, given by the government, given by everyone, and we all are following. But still, we cannot rule it out completely. So when school has sanitized the whole school, they are telling that come in line, they are telling that don't rush. Few things you have to notice. First thing, explain them how COVID spreads. What is the mechanism of this to do? If you are not child or we are anyone not in coming in contact with the virus, there is no chance of COVID to develop. Very simple. It will happen only when some foreign body is entering into our body. If something from outside not coming, we will never develop COVID our own. We cannot invent, our body cannot invent COVID. It cannot. So it should not enter in our body. Now, what is this way to enter in our body? Through eyes, through nose, through mouth, if there is some cut in hand, or even say that through hairs also, sometimes it goes there, pores. Our body has many pores, so through that it goes. Now, first thing that something has to reach to our body. How it will reach to our body? Only when some other person contaminated is coming to us. That's why even Prime Minister is saying Hello, that sir. 6 feet distance. Yes, sir, please tell. You want to speak something? Yes, sir. So I'll speak. I'll stop now. अभी हम नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा बोलिए और हम सब आपको सुनना चाहेंगे. बताइए. जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत अच्छी है. आपकी आवाज बहुत अच्छी है. थोड़ा हिंदी में बोले. आई थिंक मुझे लगता है हिंदी में समझने वाले ज्यादा हैं. तो लेट इट बी अ मिक्स लैंग्वेज एंड हिंदी मोर. ओके. तो कोशिश करें कि हम उससे दूर रहें. दूर रहने के लिए डिस्टेंस बनाएं, 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखें और कोशिश ये करें कि हम नजदीक एक किसी के भी ना आए, चाहे जो भी हो. हम जितने दूर रहेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे. तो बच्चों को ये सिखाएं कि किसी तरह से भी फिजिकल डिस्टेंस उनको बना के रखना है. इसलिए स्कूल्स में सर्कल्स बने रहेंगे. जब स्कूल में बच्चे आएंगे
तो आपने देखा होगा स्कूल में गेट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, एक साथ बच्चे जल्दी से जल्दी इंटर करना चाहेंगे। उस समय अब स्कूल के लिए मैंडेटरी है कि स्कूल सबका टेम्परेचर ले, उसके बाद अंदर जाने देगा। टेम्परेचर की मशीन सैकड़ों स्कूल में नहीं हो सकती, ये 1 2 3 4 होगी कि पैसे भी लगते हैं, उतने आदमी भी चाहिए, उतने गेट भी चाहिए, उतनी जगह भी चाहिए, तो एक एक करके ही हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने कम से कम इंडिया में या ज्यादातर जगहों में क्यू सिस्टम, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखने का हम लोग को आदत वही है। सिनेमा हॉल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के टिकट खरीदा करते थे, रेलवे लाइन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के काम करते थे। अब उससे ये शायद एक नया सिस्टम सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है कि सबको ये समझना पड़ेगा कि हमको एक दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो जहां राउंड बना हो उससे आगे न जाएं, ये बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल बाद में सिखा पाएंगे, जब वो आएंगे तब सिखाएंगे। लेकिन पहले दिन ही अगर ये बढ़ गया 1 से 2 में, 10 में, 20 में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब पहले दिन स्कूल में आए तो हमको ये समझा के भेजें कि वो एक दूरी बना के रखें, जब वो खड़े हों उनका टेम्परेचर लिया जाएगा। मास्क हमेशा जरूरी है बच्चों को पहनना। अब बच्चे घर में मास्क पहन नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सडनली आप बोलेंगे कि अब बच्चा मास्क पहन के चले जाओ। मास्क पहनना बहुत ही मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, तुरंत निकाल देते। आप ज्यादातर लोग देखे लगाते हैं, तुरंत बाहर निकाल सर एक देते हैं। क्वेश्चन है हमारा। सर हेलो जी सर। जी सर बताएं। अरे सर, हर सिंह मैं बोल रहा हूँ, बबरीता अमृता का फादर। जी सर बात ये है, मास्क भी हम भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, लेकिन WHO ने तो ये भी कहा है कि नोस और माउथ से तो जाता ही जाता है, आई से भी चला जाता है अंदर। अब इनके लिए फिर वो विंडशीट भी भेजे। भेज देना चाहिए सर। आइडियल तो ये होगा कि पीपी किट के साथ भेजा जाए, लेकिन बच्चे या कोई भी मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन हमने जैसे हम अपने स्कूल में टीचर्स को विंडशीट करना हम कंपलसरी हमने ला के रख दिया है स्कूल से, और अच्छी क्वालिटी के लाया है, जल्दी फटेगी नहीं। हम टीचर्स को कंपलसरी करेंगे कि कम से कम उनसे दूसरों में न जाए, तो टीचर करेंगे। और बच्चों को अगर आप पहना के भेजें कि सर, अभी मेरी बेटी दिल्ली से आई थी, उसको मजबूरन हमको बुलाना पड़ा प्ले से, उसको हमने पूरा पीपी किट डॉक्टरों वाला पहना के बुलाया था। लोग हंस रहे थे, लोगों को खराब लग रहा था, जो लगे लगे, लेकिन बच्चे की सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप पहना के भेज जी सर, प्रॉब्लम एक है पीपी किट जो है, हम बच्चे जो है वो संभव नहीं हो। पीपीटी प्रैक्टिकल नहीं होगा सर, लेकिन प्लेन में आते समय तो 2 घंटे के लिए संभव था, तो वो हमने किया। ज्यादातर लोग प्लेन में भी यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारी एनवायरनमेंट गर्म है, उसमें पीपी किट बच्चे बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी संभव नहीं। पीपी किट तो मेंटेन करना डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग के लिए तो संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली वो संभव ही नहीं है किसी तरह से। वो और भी प्रॉब्लम करने लग जाएगी, टॉयलेट में जाना है, कहीं कुछ करना है, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे थे, इवन विंड शीट लगाना या मास्क लगाना बहुत ही मुश्किल होगा बच्चों की, तो उसकी प्रैक्टिस घर से 2-4-10 दिन पहले से कराना शुरू कर दें। अगर उस दिन सिर्फ कराएंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू। यस मैम। हेलो, उसमें डॉक्टर साहब एक सॉल्यूशन। हेलो जी यस मैम, अनन्या मैम। मैम, सर बच्चे लोग को भेजना जरूरी है क्या स्कूल पे? नहीं, अभी तक सरकार ने कहा कि 9 से 12 को बच्चे पेरेंट्स चाहें तब जाएं, उसके बाद की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। और शायद अगर बच्चे को आप नहीं भेजेंगी तो कोई स्कूल मना नहीं करेगा, कोई स्कूल मजबूर नहीं करेगा, इवन सरकार कह देगी तो भी मजबूर नहीं करेगा। तो जब तक आप चाहें तब तक बच्चे को रख सकते हैं, और सुरक्षित भी यही होगा कि बच्चे को जितना ज्यादा फोन पे ऑनलाइन करा सके, कोई मजबूर नहीं कर सकता बच्चे को भेजने के लिए। ये सरकार भी, अभी तक सरकार ने नहीं कहा है, और जब शुरू भी करेगा तो शायद ये ज्यादातर संभावना है कि मजबूर नहीं होगा कि आपको भेजना ही है, वो शायद नहीं आएगा, लेकिन वो समय ही बताएगा। फिलहाल संभावना कम है। तो बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करा के भेजें, ये सारी चीजें उनको समझाएं। सैनिटाइजर स्कूल में होगा, लेकिन सैनिटाइजर साथ में बच्चों को जरूर भेजें, और उसको 2-3 दिन से घर में प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें। तो सैनिटाइजर यूज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और कम से कम मास्क हमेशा लगा के रखें। खाना शेयर मत करें, पेंसिल शेयर मत करें। उनकी बैठने की जगह फिक्स होगी, अपनी जगह पे ही बैठें। अभी चूंकि छोटे बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए उनको
और करना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन बड़े बच्चे बहुत बार बात नहीं सुनते हैं, तो उनको घर में बैठा के आपको भी समझाना पड़ेगा, हम लोग भी उनको समझाएंगे, लेकिन हर समय टीचर सामने नहीं हो सकता। नहीं इसके लिए उनको जब तक ये बात अंदर तक नहीं घुस जाएगी कि ये कितना खतरनाक है और कहाँ तक आगे तक बढ़ सकता है, कहाँ तक उसकी प्रिकॉशन कहाँ तक करनी है, ये किया जाएगा, तभी हम सब के लिए ये आसानी होगी और तभी हम सब चीजें आसानी से कर पाएंगे। दीप्ति, कैन यू टेक इट फर्दर? So I can take it from here. मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा जिस पे मैं बात करूंगी। जैसे कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव करें बच्चों को। कई बार बच्चे घर पे अग्रेसिव हो रहे हैं, इम्पेशेंट होते हैं, या बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं और पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं इस और विषय यही सब लोग जानना भी चाहेंगे। आज की सबसे ज्यादा पर्टिनेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप बोलेंगी, तो दैट विल बी रियली गुड फॉर एवरीवन। Right. So I will be talking about this topic. So starting with behavior management. सबसे पहले behavior management की बात करते हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहूंगी। जो स्क्रीन अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। ये एक 5 मिनट की एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी। तो एक कैमरा ऑन कर लीजिए पेरेंट्स के लिए। पेरेंट करेंगे ये एक्सरसाइज जो मुझे सुन रहे हैं, राइट? सो सब मुझे देख पा रहे हैं? मैम Okay. नहीं दिख रहे हैं मैम। नो मैम। नो मैम। मुझे देख पा रहे हैं? नहीं मैम नहीं दिख रही हैं आप। नहीं दिख रही हूँ। ओके नो मैम नहीं दिख रही हैं। सर, कैसे होगा कि आई एम विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am, you are visible. मैम आप दिख नहीं रही हैं। सर विजिबल। बेटा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, अपना स्क्रॉल करिए तब शायद आपको दिख पाएंगी। एक स्क्रीन में सिर्फ 4 लोग दिखते हैं, तो उसको थोड़ा सा कर देंगे तो दीप्ति सिंह मैडम में लग जाएंगे। लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉलिंग का सिस्टम रहता है ना इसमें। सो आपको मेरी शक्ल देखनी है सब लोगों को एंड सी व्हाट आई एम दीप्ति नहीं दिख रही है मैम। दीप्ति, एक सेकंड, कुछ लोग फोन पे होंगे, यू कैन आस्क देम टू पुट द फोन लाइक दिस। ओके ऑलराइट। ऐसे रखें फोन को तो 4 लोगों की फोटो भी आएगी आपको, अगर फोन पे हैं। सर मैं फोन पे ही हूँ। काफी कुछ लोग फोन पर फोन में होंगे। ऐसे रखें फोन को, नजर आएगा अब आपको शायद। हॉरिजॉन्टली आप रखिए और स्क्रॉल कर सकते हैं। राइट। सो अभी बेहतर है, आप देख पा रहे हैं आप? एक्चुअली एक्सरसाइज कराना मेरे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज लेक्चर से कई बार हमें समझ में नहीं आता, जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो चीजें बेहतर समझ में आती हैं। सो आई एम होपिंग दैट एवरीबॉडी कैन सी मी नाउ, राइट? सो जैसा मैं बोलती हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो मैं बोल रही हूँ वैसा आपको करना है। Do as I say. All of you touch your head. Touch your head. Touch your nose. Touch your ear. Touch your chin. Touch your chin. Touch your chin. Is it your chin? You're holding cheek. What is this? आप ये कर रहे हैं, आपको बोला गया चिन। This is my cheek. But हम इंसान, all human beings learn by seeing. हम देख के सीखते हैं, सुन के हम नहीं सीखते। इसीलिए जब घर पे मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लिया करो, होमवर्क कर लो, तो मेरे बच्चे नहीं सुनते। Agreed? I know all the mothers and parents. मेरे को आज तक कोई ऐसा इंडियन पेरेंट नहीं मिला है जिससे ये बोला कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बोलते। सारे माँ बाप इंडिया में बहुत ज्यादा पेस्टर करते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ना बहुत जरूरी है और होमवर्क करो, पढ़ो। Am I? You all agree with me? Give me a thumbs up if you agree. Feel कि हाँ हम अपने बच्चों को बोलते हैं होमवर्क करने के लिए और पढ़ने के लिए। गुड। सो हम बोलते हैं तब भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, तो कुछ तो हमें और तरीका आजमाना पड़ेगा कि बच्चा सुन के नहीं सीख रहा है, बच्चा सुन के नहीं कर रहा है।
सो क्या करें कि ये हमारी बात समझें और जो हम चाहते हैं उनसे वो उस तरह बिहेव करें। तो वो वाली एक्सरसाइज याद रखिएगा, बोलने से हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे। वो हेड वाली, टच और चिन वाली, तो मैंने चिन बोला लेकिन अपने सबने क्या पकड़ा, अपना चीक, क्योंकि आपको मुझे दिख रहा था चीक पकड़ते हैं, तो आप सबने वही किया। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने बच्चे से किसी सर्टेन बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस तरह बिहेव करे, तो पहली चीज तो वो क्वालिटी मुझे अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि बच्चे अक्सर होमवर्क नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं होमवर्क नहीं करना, और मम्मी पहले टीवी देख लेता हूँ, मम्मी कार्टून देख लेता हूँ, उसके बाद कर लूंगा। मम्मी बस 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा कार्टून, 10 मिनट बस यूट्यूब का एक वीडियो देख लूं मम्मी, एक गेम खेल लूं, उसके बाद होमवर्क करूंगा। तो इसको हम कहते हैं, बच्चों की आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, मतलब जो अभी है एंजॉय कर लो, पढ़ाई तो बहुत बोरिंग चीज होती है, उसे हम बाद में करेंगे। पढ़ना इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, तो उसको हम करेंगे बाद में। अभी एंजॉयमेंट वाली चीज है, गेम खेलना, यूट्यूब देखना, वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स खेलना, कार्टून देखना। सो ये बच्चों में जो बिहेवियर आया है कि होमवर्क बाद में और पहले मजा, ये कहाँ से सीखा बच्चों ने? हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग एडल्ट्स बिहेवियर। बच्चे बड़ों का बिहेवियर देख के सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में ऐसा होता होगा, लेकिन काफी घरों में ऐसा होता है, हस्बैंड ऑफिस से घर आए और उन्होंने आके बोला आज बहुत भूख लग रही है दीप्ति, फटाफट खाना लगा दे, आज दिन में भी लंच नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने तुरंत जवाब दिया हाँ हाँ अभी लगा रही हूँ, बस आधे घंटे का सीरियल देख लूं, उसके बाद फटाफट रोटी बना देती हूँ, भिंडी बनी रखी है। तो बच्चे ने मुझे देख के क्या सीखा कि टीवी देखना और ये सीरियल देखना बहुत जरूरी है, आधा घंटा खाना खाना या आधे घंटा वेट कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट काम है वो बाद में भी किया जा सकता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हम लोगों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एडल्ट से, राइट? सो हमें अपने आप में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे अगर हम अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। यस ठीक मैम। है, सो बच्चों आज क्लास है पापा और मम्मी की, खुश हो? एवरीबॉडी इज हैप्पी कि मम्मी पापा की आज अच्छी सी क्लास होगी। सो पहली चीज, जो भी आप चाहें कि मेरा बच्चा सच बोले, मेरा बच्चा टाइम को वैल्यू करे, मेरा बच्चा पैसे की वैल्यू करे, जो भी क्वालिटी आप अपने बच्चे में चाहते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अडॉप्ट। आपको अपने अंदर वो क्वालिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी अपने बच्चे से उम्मीद रखेंगे कि वो इस तरह बिहेव करे। ठीक है, सो अब मैं और दो चार तुरंत फटाफट आपको ट्रिक्स बताती हूँ जो आप बच्चों के साथ कर सकते हो। कैन यू सी माई स्क्रीन? इज माई स्क्रीन अवेलेबल? इज इट विजिबल टू एवरीवन? मैम। Yes, it's visible. It's visible. ग्रेट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is video. तो मैं क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 15 मिनट्स में इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हद तक ये देखा गया है कि हमारा बहुत बायस्ड और जजमेंटल बिहेवियर होता है। बायस्ड बिहेवियर का मतलब मेरा ये है कि बच्चा जो है, बच्चा अगर खाना खा रहा है, ठीक है, या खेल रहा है, अदर देन पढ़ाई कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम घुसा देते हैं उसमें पढ़ाई। हर बार हम उसमें कोई एक पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक, टीवी देख रहा है तो पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, इसको थोड़ा सचिन जी उधर प्लीज कर म्यूट योरसेल्फ, सचिन यादव। सो हम उसमें पढ़ाई की बातें थोड़ा सा ये बीच में पिन को उधर डिस्कस कर कर लो। लेते हैं। सो अक्सर ये देखा गया है कि उस चीज से बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि हम जनरलाइज करते हैं उनका बिहेवियर। जैसे पढ़ाई में अगर मेरा बच्चा थोड़ा कमजोर है या बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, एवरेज मार्क्स लेकर आता है, तो जैसे ही वो मुझसे मांगता है कि मेरे को मोबाइल, मम्मी मोबाइल खरीद के दे दो, आजकल मेरे सब फ्रेंड्स के पास नया नया मोबाइल है, सब क्लासेस मोबाइल पे ही तो हो रही है, तो मुझे नया फोन खरीद के दे दो, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुझे, मोबाइल लेके क्या करेगा? सो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स बच्चों को आती हैं और हम जेनरिक उनको हर चीज रिलेट कर देते हैं उनकी पढ़ाई से, तो वो बहुत अच्छा मोटिवेटिंग तरीका नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि बायस ना रहे जब हम बच्चों से बात करें और जज नहीं करें। हो सकता है बहुत ज्यादा जब हम एज पेरेंट नेगेटिव रिमार्क्स बार बार बच्चे को देते हैं,
अक्सर मैं टीचर्स वर्कशॉप में ये कहती हूँ कि एक टीचर बच्चे को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, उसका रीजन है। Yes, ma'am. ऐसे एक माँ बाप बच्चे की भविष्य बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, उसका भी एक रीजन है। बच्चों को जो वो हम लोग रिमार्क्स दे रहे हैं, रिमार्क्स मतलब जो उनसे हम कह रहे हैं कि तू तो नालायक है, तू तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, तू तो रिक्शा वाला ही बनेगा, मुझे पता है। तो धीरे धीरे द चाइल्ड सिंक्स इन दैट फीलिंग एंड ही बिलीव्स, ओहो मेरी मम्मी भी 10th पास है, पापा ने भी खास पढ़ाई तो की नहीं है, ग्रेजुएशन करी हुई है, तो मम्मी ने 10th पास की है, पापा ने ग्रेजुएशन की है, मेरा भविष्य भी यही होने वाला है, मैं तो रिक्शा ही चलाऊंगा, वैसे भी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो आगे भी मैं बहुत बेहतर नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादातर बच्चों को नेगेटिव रिमार्क्स देने की वजह से बच्चे पुअर परफॉर्म करते हैं। सो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को क्या सही और क्या गलत ये नहीं बताएंगे, बट हर वक्त नहीं बताना है, हर समय उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, अक्सर माँ बाप, आजकल के माँ बाप तो बहुत जागरूक है और उन्हें पता है कि बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए। हमारे जमाने में अलग होता था कि पापा और मम्मी ज्यादा बच्चों से पूछते नहीं थे या डिस्कस नहीं करते थे। आजकल तो बच्चा क्या कपड़े पहनेगा, क्या खाना खाएगा, कौन सा सीरियल देखेगा, घर में क्या सामान आएगा, सब चीजों पे बच्चों का ओपिनियन मांगा जाता है। बट हियर जो मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कम्युनिकेशन, वो उनकी चॉइसेस के बारे में नहीं है, वो कौन सा मोबाइल लेंगे उसके बारे में नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि बच्चा आपका कैसा फील करता है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो एज अ पेरेंट अगर आपको पता है तो आप बच्चे को ज्यादा बेहतर हैंडल कर पाओगे, राइट? सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। सो व्हेन आई से क्वालिटी टाइम, मैं काफी वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंट्स की, और उसमें मैं काफी चीजें पेरेंट्स को बताती हूँ कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बच्चों से बातचीत करो। तो एक वर्कशॉप अटेंड करके सर थे, बहुत ही एक बैंक में मैनेजर थे, तो काफी इन्फ्लुएंस हुए मेरी वर्कशॉप सुन के, और उन्होंने बोला मैडम अपना नंबर दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने ये सारे जो आपने नुस्खे बताए हैं ये सारे अपनी लाइफ में यूज करके, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या रिजल्ट रहा, तो आपको भी पता चलेगा कि आप सही बताती हैं या गलत बताती हैं। सर बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उनको समझ में आया कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो अब सैटरडे को वर्कशॉप थी, संडे वो लोग संडे पापा घर पे थे, तो सर ने क्या किया, सुबह 7:30 बजे बच्चों को उठा दिया, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को उठा दिया, बेटा उठो बेटा उठो, आज संडे है, आज हम टाइम स्पेंड करेंगे, पूरी फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करेगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। अब बच्चे आंख खोलते हुए ऐसे उठ रहे हैं और देख रहे हैं, और मम्मी को पूछ रहे हैं, समझ में आया क्या हो गया, यानी आज क्या है मम्मी, सुबह सुबह पापा को क्या हो गया? आज सुबह सुबह पापा, और संडे 7:30 बजे। एनीवे मम्मी ने चुपके से बच्चों को बोला एक दिन का है, चला लो, चला लो, चुप रहो। बच्चों ने भी बोला ओके ठीक है। सो बच्चे उठे, पापा ने बोला फटाफट नहा लो, तैयार हो जाओ, और उसके बाद हम सब फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करेंगे, और वाइफ को भी बोला अरे सुनीता तू भी फटाफट खाना बना ले और आ जा, हम साथ में बैठ के चारों लोग आज खाना खाएंगे। तो वो पंजाबी फैमिली थी, तो उन्होंने आलू के पराठे और लस्सी और कर्ड और वो सबका अरेंजमेंट कर रखा था। सो दे हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद पापा ने बोला आ जाओ चलो अब एक काम करते हैं, हम सब मिलके गेम खेलते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या गेम खेलना है, कैरम ले आओ, सब मिलके कैरम खेलेंगे। ठीक है, वो कैरम लेकर आ गए बच्चे और खेलना शुरू कर दिया, राइट? थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि पापा सोफे पर धीरे 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 पापा क्या हो गए, सोफे पर 4 आलू के पराठे और 2 लस्सी का ग्लास पीने के बाद पापा का क्या हाल होगा, आधे घंटे बाद सोफे के ऊपर सो गए। यस। सो उसके बाद वो पूछते हैं, जो छोटी वाली होती है घर में, वो पापा को जाके ऐसे बोलती है, पापा पापा अगर आपका खेलना हो गया तो क्या हम जाए खेलने अब? सो जब मैं आपको क्वालिटी टाइम के बारे में बता रही हूँ, तो क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चों के लिए होना चाहिए। अक्सर एज पेरेंट्स हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आजकल इनफैक्ट इट्स बेसिकली इट्स इनटू कि हम फैशन कह लीजिए या ट्रेंड कह लीजिए
कि हम बच्चों की काफी सुनते हैं और बच्चों के बारे में काफी जागरूक हैं, सोचते हैं, इसीलिए सब आप लोग एक वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारे पेरेंट्स के लिए कभी कोई वर्कशॉप नहीं होती थी पेरेंटिंग। मतलब पेरेंटिंग भी किसी को सिखाई जा सकती है, पेरेंटिंग कभी किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। हमारे बच्चे के साथ क्या चलता है, कैसी टेक्निक्स होती है, वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। सो पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह के वेबिनार्स भी हैं। आप खुद देखिए कि आप आज 2 घंटा पेरेंटिंग के बारे में सुनने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब आप जागरूक हैं। बट जो आप सीखें उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज करें। व्हेन आई से क्वालिटी टाइम का बच्चे के लिए रेफरेंस होना चाहिए। द चाइल्ड शुड एंजॉय द टाइम स्पेंड विद यू, नॉट दैट यू आर एंजॉयिंग द टाइम दैट ही इज स्पेंडिंग, राइट? अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेरेंट्स बच्चों के साथ होते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हम लोग साथ में एज अ फैमिली बैठे हुए हैं, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि या तो मम्मी बोल रही होती है या पापा बोल रहे होते हैं, बच्चे सिर्फ सुनते हैं। सुन रहे होते हैं, और डिस्कशन भी वहां पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो वो Yes, ma'am. चीजें बच्चा बैठा सोच रहा है। अब जो बच्चे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत देखिएगा, ताना मारेंगे, बाद में कहेंगे देखा दीप्ति मैम ने भी बताया था। बच्चा बैठा हाँ, सोच यस रहा है, सर। फिर से चालू हो गए। ये थकते नहीं है रोज रोज एक ही चीज बोलते बोलते? ये मम्मी का क्या एक टेप रिकॉर्डर फिक्स हो गया गले में, एक ही बात बोलती है यार, ये बोर नहीं होती एक ही बात करते करते? सो कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग। आप बच्चों को ज्यादा बोलने दो और आप उनको सुनो ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, जब काउंसलिंग में हम पेरेंट को ट्रेन करते हैं, हम ये बताते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछो। अब मेरा बच्चा घर पे खेल रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। बच्चा मेरा ड्राइंग रूम में खेल रहा था। अब कोविड का टाइम चल रहा है, बच्चे बाहर जाके खेल नहीं सकते, पर बच्चों में तो एनर्जी हमसे ज्यादा होती है। अच्छा, आप एक गेस करके बताइए, एक एडल्ट से बच्चे में कितने लेवल, कितना मल्टीप्लाइड एनर्जी ज्यादा होगा? हाउ मच एक्स मल्टीप्लाइड विद एनर्जी एक बच्चे में होती है देन फ्रॉम द एडल्ट? कोई बता सकते हैं? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स? एनी गेस? बच्चे में आपसे ज्यादा एनर्जी, आप ये मानते हैं कितने टाइम्स आपसे ज्यादा एनर्जी होती होगी? नहीं समझ आया बेटा, क्या बोल रहे हैं? ओके, 10 टाइम्स। ओके, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही। अब बच्चों में हमसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसलिए उनको घर पे बैठा के रेस्ट्रिक्टेड रखना बड़ा मुश्किल है। तो और हम मुश्किल है बाहर मैम। डरते हैं, तो हम बच्चों को भेज नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि बोलते हैं यहीं खेल लो। तो मेरी बेटी है 8-9 साल की होगी, अब वो घर पे बॉल लेके खेल रही थी, तो ड्राइंग रूम में खेलने लगी बॉल के साथ। तो मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था, मुझे लगा कि अब बॉल लगेगी सीधा टीवी टूटेगा। ठीक है, तो मैं बच्चे के ऊपर शाउट करने लगी, क्या कर रही हो, क्यों खेल रही हो, मत खेलो, देख नहीं रही हो टीवी, टीवी टूट जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बच्चा बॉल लेके अपने बेडरूम में पहुंच गया, वहां भी वो टैप कर रहा है बॉल को, ऐसे ऐसे से खेल रहा था। और जैसा मेरे को डर था, हुआ वही। 15 मिनट बाद टक करके टूटने की आवाज आई, और मैं सीधा रूम में गई, और मैंने बोला, देखा मैंने कहा था टूट जाएगा, मना किया था ना खेलने के लिए, और चाटा मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे कम्युनिकेशन में, इस पूरे एपिसोड में मेरे बच्चे को ये समझ में आया कि मम्मी को हमारे खेलने से प्रॉब्लम है। बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फील कि आवर पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, मम्मियों को हमारे खेलने से प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम वही चीज बच्चे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ क्या थी? खेलने से नहीं थी, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा बच्चा खेल रहा है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से थी जहां वो खेल रहा है और जो चीज वो खेल रहा है। बट मैं बार बार अपने बच्चे को क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्यों खेल रहे हो, मत खेलो। सो एज एडल्ट्स बी माइंडफुल मतलब थोड़ा सोचिए कि हम अपने बच्चे को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं ये भी बोल सकती थी, अगर आप मेरी जगह होते उस सिचुएशन में, तो आप थोड़ा बताइए कि क्या बोल सकते थे हम बच्चे को? एनी अदर वे ऑफ डीलिंग विद दिस चाइल्ड? एनीवन? हेलो, मैं तो बोलती हूँ मैम बॉल के साथ। ओके, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं?
और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर देती हूँ, उनका भी थोड़ा मन लग जाता, ताकि उनका ये हो जाता है ना। मैं भी थोड़ा जैसा मुझे आता है मैं भी थोड़ा क्रिकेट खेलती हूँ। मैं तो इसी तरह अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। मैं बच्चे से ये बोल सकती थी कि बेटा घर पे बॉल से मत खेलिए, बिकॉज चीजें टूट सकती हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप लूडो लेके खेल लीजिए, या आप कार्ड्स ले आइए, मम्मी आपके साथ खेलेगी, या गेम ले आइए, बोर्ड गेम ले आइए, हम दोनों मिलके खेलते हैं। ये बेहतर तरीका होता है उसे हैंडल करने का। बट मेरा बच्चा ये सुन सुन के बड़ा हो रहा है कि खेलना इज गलत, खेलने से मम्मी को प्रॉब्लम है, और वो No. धीरे धीरे बच्चे बिलीव करने लगते हैं। तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग टू योर चाइल्ड, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर चाइल्ड। प्रिंस यादव सर, जस्ट क्विकली मैं ये फिनिश कर लेती हूँ बिकॉज मुझे बहुत कम टाइम दिया गया बोलने के लिए। मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। दूसरी चीज, ज्यादा सुनिए बच्चों को और लीडिंग क्वेश्चन दीजिए कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर बच्चा आपका जिद कर रहा है, कोई चीज आपसे मांग रहा है, ठीक है, अक्सर इस बात पे बच्चों के साथ बहुत लड़ाइयां होती हैं जब हम बच्चों से कोई चीज, बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं। सो जनरली देखा गया है देयर आर 2 ways टू हैंडल इट। एक तो तरीका होता है हम मना कर दें बच्चे को, हम नहीं देंगे। दूसरा तरीका होता है हम बच्चे को बोलते हैं अच्छा हम दे देंगे, यस या नो, दो ही चीजें होती हैं। क्या कोई तीसरी चीज भी आप लोगों ने यूज की है बच्चों को? Just 1 minute, Anjali Saroj ma'am, please mute yourself. There is a double voice coming. And rest of you, if anybody unmuted, please mute. Thank you. Okay, so shall I continue? So there are 2 ways to deal when your child is becoming little agitated या जिद्दी जिसे हम कहते हैं। हम अक्सर बच्चों के साथ ये पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैम बहुत जिद्दी हो गए हैं और मानते नहीं है हमारी बात, राइट। सो उस केस में हमारे पास, मैं उसी सिचुएशन को डिस्कस कर रही हूँ। आपने अक्सर जब आप मॉल गए होंगे या मार्केट गए हो, अब तो खैर नहीं जाते, लेकिन 6 महीने 7 महीने पहले जब आप जाते हैं मार्केट तो आपने देखा होगा एक आधा बच्चा वो नीचे जमीन पे लेटा हुआ ऐसे हाथ पैर मार रहा है और फिर फैल रहे, और उसके मम्मी पापा बेचारे शर्मिंदा हो रहे हैं वहां पे खड़े हुए मार्केट में। सो वो सिचुएशंस भी आपने देखी है, राइट? यस मैम। सो व्हेन वी हैंडल आवर चाइल्ड, व्हेन वी डील विद आवर चाइल्ड, जब वो हमसे कुछ मांग रहा है तो हम हाँ बोल सकते हैं उसे या ना बोल सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा ना बोलते हैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मी मेरे क्लास में सबके पास वो नया इरेजर आया है वो है, तो मुझे नया इरेजर दिलवा दो, और मैं उसको मना कर देती हूँ। और मेरी आदत है, मतलब एज अ पेरेंट मैं हमेशा हर चीज के लिए बच्चे को मना ही करती हूँ, नहीं मैं नहीं दिलवाऊंगी, मैं नहीं दिलवाऊंगी आपको, ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं खरीदेंगे, अभी आपके पास है आप वो वाला यूज करो। तो बहुत ज्यादा ना करने वाले पेरेंट्स में ये देखा गया है कि बच्चे आगे बढ़ के जो हम बचपन में बच्चों के साथ बिहेव करते हैं वो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। सो वो बच्चे जिनको बहुत ज्यादा दबाया गया है या ना बोला गया और उनकी विशेष पूरी नहीं करी गई है, वो बहुत ज्यादा आगे चल के या तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि डिजायर्स तो हैं, जिस स्कूल में वो जा रहे हैं, जिन बच्चों के साथ वो बैठ रहे हैं, उनको वो चीजें चाहिए, तो या तो वो चीजें झूठ कह के आपसे लेंगे, या कई बार बच्चे ऐसा भी देखा गया है चुरा लेते हैं, मम्मी ने मुझे इरेजर नहीं दिलाया तो मैं किसी और बच्चे का ले लेता हूँ। तो इन सम केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व कि हर वक्त बच्चे को मना मत कीजिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा हाँ बोलने वाले, क्योंकि आजकल हम सब जितने यहाँ पर हैं अपने पेरेंट्स से बेटर अर्निंग है हमारी। विल यू एग्री कि हमारे जो माँ बाप कमाते थे या जो उनका लाइफस्टाइल था उससे हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बेहतर है, हम उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, जो पहले हमारे पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं थी, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो हम उनको सब कुछ लाके दें। I remember when my father was in school, he used to have 2 pairs of clothes. पापा ये बताते हैं कि एक कपड़े हम पहन के जाते थे और एक हम धो देते थे, अगले दिन वो पहन लेते थे, तो 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते थे। और शादी में अगर कहीं जाना होता था तो एक ही थान में से 6 बच्चों के लिए सबके लिए सेम शर्ट्स बन जाती थी, ठीक। और खिलौनों के नाम पे एक आधा टूटा फूटा कोई खिलौना होता था। बट आजकल के पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है, आप एक सेम ड्रेस अपने दोनों बच्चों को पहना के दिखा दीजिए और उनको कहीं मार्केट ले जाइए, वो पहनेंगे ही नहीं, राइट। नहीं। कपड़ों के नाम पे बच्चों के पास मतलब अलमारियां, अपनी अपनी अलमारियां हैं, 2 जोड़ी कपड़े तो छोड़ दीजिए, अपनी अपनी पूरी की पूरी शेल्फ है। लेकिन अगर कहीं शादी में जाना हो या पार्टी में जाना हो तो बच्चे बोलते पहने क्या, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है,
हम क्या पहन के जाएंगे? ऐसे ही गेम्स के लिए आई नो दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने पूरा का पूरा रूम बनाया हुआ है, प्ले रूम बच्चों के लिए, तो खिलौनों भी कमी नहीं है। लेकिन मार्केट जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं हमारे पास खिलौने नहीं है। सो बहुत ज्यादा हाँ बोलने से भी दिक्कत है। हर वक्त हाँ बोलोगे तो वो बच्चे को कभी भी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बड़ा हुआ और बाद में लाइफ में किसी ने उसने कुछ मांगा किसी से और किसी बच्चे ने उसे मना कर दिया, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा लाइफ में जो भी उसने मांगा उसके माँ बाप ने उसे दिया। सो जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में कि इतने सारे रेप केसेस जो हो रहे हैं, हमारे पास एसिड अटैक्स हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि एक अर्ली एज पे हमने वो टॉलरेंस, वो स्किल अपने बच्चों को नहीं सिखाई है। टू एक्सेप्ट फेलियर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर चाइल्ड टू लर्न दैट। हमेशा यस नहीं कीजिए, हमेशा नो मत कीजिए। देयर इज समवेयर इन द मिडल, जिसे हम कहते हैं, कोई बता सकता है एक और टेक्निक? यस या नो के बीच की एक टेक्निक होती है जिससे मोस्टली हम बच्चों को हैंडल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। We can explain that. यस नहीं बोलो, नो नहीं बोलो। यस मैम सिचुएशन को देखते हुए हमको बच्चे की क्या कह रहा है और किस स्थिति में कह रहा है, बच्चे को ये जो होता है ये सिखाना बहुत जरूरी होता है। छोटे ये बहुत बढ़िया आंसर है, क्योंकि सो सिचुएशन के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। यस, कभी हाँ बोलेंगे, कभी ना बोलेंगे। अच्छा, उनका एक और चीज करते जाएंगे, वेट को उसी तरह हम लोग हैंडल करते, उस तरह वो धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जाएंगे और उसी हैंडल में वो ढलते जाएंगे कि हाँ मम्मी ने, और ज्यादा तो मोस्टली मम्मी का इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें कि उनकी मम्मी कैसे कैसे उनको हैंडल करेगी अपने बच्चों को। ठीक, इसीलिए कहा जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ डिफर करूंगी मैम, मुदिता मैम आपसे। मुदित मैम, पेरेंटिंग आज के टाइम में खाली मम्मी का रोल नहीं है, इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, सो आते हैं दूर होते हैं जब हम क्योंकि हम थोड़ा दूर जॉब करते हैं, इसीलिए मुझे स्पेंड करना पड़ता है। टू क्विकली फिनिश दिस, होता ये है कि अक्सर मम्मी का पहले ये होता है, लड़कियों की ना में भी हाँ होती है, और अक्सर हम अभी तक लड़कियां बनी है, हमारी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, बट हमें अभी भी मम्मियां जो होती है ना, वो पहले अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिलाने की जरूरत नहीं है, और पहले ना 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 करती है। और बच्चों को पता होता है मम्मी ना थोड़ी देर ड्रामे करेंगे, ना करेंगे और उसके बाद हाँ कर देंगी। सो चिल्ड्रन नो हाउ टू मैनेज देयर मदर्स, बट अगर आपने ना बोला स्टिक टू नो, अगर आप हाँ बोल रहे हो तो स्टिक टू हाँ। इसलिए जैसे ही बच्चा आपसे डिमांड करे, टाइम आउट टेक्निक, थोड़े समय सोचिए, एकदम इंटेंस होके, मतलब एक तुरंत से जवाब आता है ना, जैसे वो अंदर से मदरली फीलिंग आती है, जैसे ही बच्चे ने कुछ मांगा मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है नो, और फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद वो यस हो जाता है। तो बच्चा को समझ में आता है मम्मी पहले ना ही बोलेगी फिर हाँ करेगी, ऐसा नहीं करना है हमें। अब थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी है। हम कभी भी तुरंत जवाब नहीं देंगे, हम पहले समझेंगे, सोचेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे यस या नो में। और सबसे बेस्ट तरीका है ना यस बोलो ना नो बोलो, डिले से बच्चे में पेशेंस आता है। अगर आपको ये चीज चाहिए, आपको 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना एक टारगेट सेट करो कि इतने दिनों के बाद आपको ये चीज मिलेगी। अगेन लिसन वेरी केयरफुली, मैंने दिन बोले हैं, कोई टारगेट के लिए ये मत कीजिए कि अगर आपके 90% मार्क्स आ गए तब मैं आपको दिलाऊंगा, अगर 70% मार्क्स आ गए मैं दिलाऊंगा। नो, माय पर्पस हियर इज मैं अपने बच्चे में टॉलरेंस, सहनशीलता बढ़ाना चाहती हूँ। वो वेट करे कि मम्मी को मैंने मांगा है तो मुझे 10 दिन बाद मिलेगा। आपका बच्चा बोलता है मम्मी मुझे पिज्जा खाना है, तो आप बोलिए आज नहीं करेंगे, 4 दिन बाद ऑर्डर करेंगे, राइट? सो तुरंत हमेशा बच्चों को प्रोवाइड मत कीजिए, मेक देम वेट एंड गेन दैट प्लेजर ऑफ गेटिंग इट आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन, राइट? दूसरी चीज, अक्सर हम एज मदर्स, ये मम्मियों के लिए स्पेशली है, बीइंग अ वुमन आई नो, हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती है,
तो हम पहले तो बच्चे से बोल देते हैं, अच्छा मुझे बता दो, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। ठीक है, बच्चा अपनी गलती मम्मी को बता देता है। और जैसे ही हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूध पी लो, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बताऊं पापा को, बताऊं पापा को, तो हम यूज करते हैं अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन उसी के अगेंस्ट अपने काम निकलवाने के लिए। तो इससे बच्चे पे धीरे 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 ट्रस्ट कम बनता है पेरेंट्स का। तो वो कोशिश कब कीजिए, इसे हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग। अक्सर पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं, मेरे क्लिनिक पर एक बार एक पेरेंट आए, बच्ची होगी कोई 7-8 साल की और माँ बाप आए। तो मैंने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या पर्पस है आने का। तो मदर बोलती है कि मैम ये ना मुझे बहुत ब्लैकमेल करती है, मुझे नहीं समझ में आता मैं इसे कैसे हैंडल करूं। वो इतनी पिद्दी सी बच्ची थी, मतलब मम्मी से भी आधी हाइट में, इतनी पतली दुबली सी। एंड आई वाज लुकिंग एट द मदर एंड सेइंग कि हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी कि ये आपको ब्लैकमेल कर लेती है। मैम आप मत सोचिए, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये तो मुझसे हर काम करा लेती है, और मुझे बस कोई तरीका बताइए कि मैं इसको हैंडल कर पाऊं। सो ब्लैकमेलिंग बच्चों ने कहां से सीखी? हम क्या करते थे, मेरा बच्चा छोटा था, नर्सरी में काम नहीं करता था, तो टेबल पे एक चॉकलेट रख दी, बेटा जैसे ही होमवर्क फिनिश होगा चॉकलेट मिलेगी। ये क्या हो गया? ब्राइब। अब हमने धीरे 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 बच्चे को ब्राइब करना किसने सिखाया? मैंने। अब भुगतेगा कौन? मैं। Right? So please be mindful of what you're doing with your child. At least confidentiality का मतलब ये है, अगर उसने ट्रस्ट करके आपसे कुछ बताया तो उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज मत कीजिए। Because believe me, when I speak to you, especially जब मैं adolescent बच्चों के पेरेंट्स से बात करती हूँ, only one thing in your life would work with your children, that is the trust. क्योंकि जो जमाना आगे आने वाला है और जिस जमाने के साथ हमारे बच्चे चलेंगे, उसमें हम उनको जिंदगी भर तो घर पे बैठा के नहीं रख सकते। आज ट्यूशन जाना है तो पापा छोड़ने जा रहे हैं, बट कल को मेरी बेटी तो नौकरी करेगी, isn't it? I have to make her independent कि वो आगे चल के अपने, ऐसा आजकल कोई ऐसा माँ बाप नहीं होता जो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आगे जाके जॉब ना करें या काम ना करें। तो वो स्किल बच्चों को हमें आज सिखानी है, राइट? और घर से बाहर हमारे बच्चे जरूर जाएंगे, चाहे वो पढ़ने जाएं, चाहे वो नौकरी करने जाएं, और तब आप उनमें कितनी चौकीदारी कर पाओगे या कितना टैप कर पाओगे उनके फोन? Only thing that you can do today is build trust in your child. So trust कैसे build होता है? जब हम उनसे सच्चे रहें और वो हमसे सच्चे रहें। तो इसीलिए कई बार एज एडल्ट हम मैनिपुलेट करते हैं, ब्राइब करते हैं, या इंफॉर्मेशन जो बच्चे देते हैं उनको हम धमकाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीजें कम कीजिए, इससे आपका ट्रस्ट बच्चों पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जेन्युइन रहिए, एक्सप्रेस द जेन्युइन फीलिंग, जो आप बच्चे से चाह रहे हो वही बच्चे को कम्युनिकेट करो। एंड बिलीव मी, जब बच्चा एक लास्ट में गुरु मंत्र, बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जब भी मैं वर्कशॉप करने जाती हूँ तो सारे पेरेंट्स मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैम आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आपके पास तो मैजिक की छड़ी होगी, घुमा दो और सारी प्रॉब्लम, सारी बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों की दूर हो जाएगी। तो मेरे पास कोई छड़ी नहीं है, सिर्फ एक चीज बच्चों के साथ वर्क करती है, वो है पेशेंस। जितना ज्यादा ड्रामा, जितना ज्यादा टैंट्रम, जितने ज्यादा हाथ पैर मेरा बच्चा मारता है, उतनी ही मैं पेशेंट हो जाती हूँ। अगर बच्चे का लेवल ये है परेशान करने का, तो मैं अपना लेवल नीचे ले जाती हूँ। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि बच्चा चिल्ला रहा है तो उससे तेज माँ की आवाज आ रही है और उससे भी तेज पापा की आवाज आती है, तो उससे झगड़े बढ़ते हैं। आपको अपना लेवल, बच्चा जितना ड्रामा कर रहा है या जितना शैतानी कर रहा है या जितनी जोर से बोल रहा है, उतने ही कम एनर्जी जो है अपनी काम रखनी है, सो दैट बच्चा भी धीरे 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 काम हो जाए। ये टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे मुझे परेशान नहीं करते, बिलीव मी मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत तंग रहती हूँ, बट जब वो ड्रामा कर रहे होते हैं या टैंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं तो मैं साइलेंट हो जाती हूँ और मैं बस एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, बेटा ये नहीं होगा। धीरे 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 लगता है 15-20 मिनट, बट 15-20 मिनट बाद बच्चों को समझ में आ जाता है, ओहो मम्मी तो मानेगी नहीं, तो इट इज बेटर कि मैं ही सो वर्क ऑन द पेशेंस, right? So that's with that I will leave the session today. I'm sorry I generally talk a lot, मेरी आदत है बहुत बोलने की, but I'll close the session with this. Any questions we'll take later on, or and then we can come back to
Sir, she can take few questions and then Narula ma'am can take a, because we have to close at 6. We can call ma'am to say few things and then we can take questions. फ्रेंड्स क्वेश्चंस अगर चैट बॉक्स में आप लिख दें हम उसको पढ़कर फिर आंसर कर देते हैं एंड वी मे रिक्वेस्ट नरूला मैम टू से फ्यू वर्ड्स कुछ सप्लीमेंट्री इनपुट्स मैम दे दें जी मैम गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग जी बहुत बढ़िया आइडियाज दीप्ति मैम एक्चुअली दे ही रही हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है and Deepti, I will endorse some of your points very with great value from my side, I should say. Now my children are big enough. मतलब अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं. Everyone, I am in USA right now. मेरे यहाँ सुबह देख रहे हैं बाहर पीछे नजर आ रहा है ना तो धूप चढ़ रही है 8:15 बजे हैं सुबह के यहाँ पे. तो मैं एक चीज पे जो दीप्ति मैम कह रहे हैं उस पे मैं एक पेरेंट्स को शुड नॉट से एडवाइस बट सजेशन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं ये बहुत जरूरी है जो मैम बात करती आ रही हैं. डोंट मेक देम डिपेंडेंट. छोटे बच्चे हैं जैसे मैं अभी देख रही हूँ मनीष बहुत छोटा सा बच्चा है यू नो एंड children who are of the age of for example 4th 5th क्लास के बच्चे. तो पेरेंट्स आप उनको कुछ छोटी छोटी शौर्य कुछ चीजों में इन बच्चों को इन्वॉल्व करें. फॉर एग्जाम्पल बच्चे अपने लेसेस कैसे बांधते हैं पैरों के जूतों के माँ बांध रही होती है बट डोंट डू दैट. देन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ही शुड बी पैकिंग हिज ओन बैग. अपना बैग खुद पैक करो. कल अगर भूल जाते हो तो देन ही शुड बी यू शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आप उसको बताएं कौन सी किताब रह गई थी. ही वॉज लाइक कॉट अप इन द क्लास हिंदी की क्लास नोटबुक लेके ही नहीं गया तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल. छोटी छोटी चीजें इनसे शुरू करवाएं. अपने स्टडी टेबल को आजकल बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है. You should not be running here and there to put his books into order. It is his work. मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ. 2 of my children are not living in India. One is in America जिसके पास मैं आई हुई हूँ दूसरा अभी स्विट्जरलैंड. ये चीजें मुझे हेल्प करी तो मैं आपसे एक एज अ पेरेंट शेयर कर रही हूँ. आई एम अ टीचर राइट. ठीक है मैं जानती हूँ मैं 30 साल से पढ़ा रही हूँ बट एज अ पेरेंट मुझे इन चीजों से बहुत फायदा मिला तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. Then by the time they were in class 6, I have 3 boys. They were given 3 different rooms to do the dusting of the rooms. 3 rooms. Till date, they talk about it. My area was drawing room and the younger twins, they had the 2 bedrooms to clean and I had my bedroom to clean. So I was putting my example in front of them. मैं अपना bedroom साफ करूंगी और ट्विंस साफ करेंगे एक तो अपने अपने बेडरूम्स एंड द एल्डर ब्रदर विल क्लीन द ड्राइंग रूम एरिया. सो द वर्क डिवाइडेड. नोबडी इज स्क्रीमिंग नाइदर कुड आई से मैं ही काम करती रहती हूँ. एंड देन सेकंड वन मोर थिंग मैम्स Ananya and everybody the parents who are sitting here give some work to the dad also. Why not? Why not? My husband was always responsible for making the salad part of the dinner or the lunch, right? And also put his things, office things in place. I and children are not responsible for your things in the morning for your office. So let the responsibilities be delegated. सबको अपना अपना काम करने की एक आदत डालें खास करके बच्चों. समय ऐसा आ रहा है जिसमें हमें इन बच्चों को डॉक्टर साहब जानते हैं सभी जानते हैं हम सडनली ऐसे माहौल में आ गए हैं तो ये बच्चों को कितनी चीजें खुद करनी पड़ रही हैं. यहाँ तक कि आपको बैठ के एज अ टीचर ही पढ़ाना पड़ रहा है राइट. तो हमें नहीं मालूम है आज से
5 साल बाद कैसी जॉब्स होंगी, किस तरह के जॉब सिनेरियोज होंगे, कैसा समय होगा. We have to prepare our children for the worst. And just now the world is facing the worst condition. घरों में बैठ के इस वक्त एक फायदा हमें बहुत बड़ा हुआ है, जो कि पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो क्रिप कर रहे थे बड़े समय से. हमारे बच्चे घर में नहीं बैठते हैं, सभी बाहर होते हैं, हम अकेले रहते हैं. तो समय ऐसा बदला कि नाउ इवन आई एम अ ग्रैंड पेरेंट, आई एम सिटिंग विद माय ग्रैंड चाइल्ड एंड ही इज वेरी हैप्पी. ही इज ओनली 1.5. भेजूंगी. वो आजकल यहाँ पे हेलोवीन का, आज 31 अक्टूबर है, यहाँ हेलोवीन फेस्टिवल होता है. तो ही इज सो हैप्पी रनिंग अराउंड बिकॉज उसको रात को हमने पंपकिन कर्व करा एंड ऑल दैट. तो अभी समय जब आप इनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें इनकी जिंदगी में, उनको खुशी मिलेगी. इन बच्चों को बहुत अपने कल्चर और अपने संस्कारों को जानने का समय मिलेगा. Are you with me, Vibha ma'am, Vibha Srivastava ma'am? Are you with me, Ananya Chaube ma'am? मैं कुछ ठीक कह रही हूँ? ये छोटी छोटी चीजें अगर आप छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों को देंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इन फ्यूचर फॉर यू. मुझे याद है मेरा बेटा क्लास 12 में, हाँ जी जी, जब क्लास में, हाँ अभी रह रही हूँ, ये क्लास 11 12th में था, तो मैंने इसको ये सिखाया था. ही ऑलवेज वांटेड मैं अमेरिका पढ़ने जाऊंगा. थैंकफुली ही केम ऑन स्कॉलरशिप. मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था बीइंग अ टीचर, बट देन मैंने ये सिखाया था, ओके वॉशिंग मशीन कैसे मैं चलाती हूँ, यू हैव टू लर्न. सिंह ये हर संडे को कपड़े लोड करवा के वॉशिंग मशीन चलाना, ऑफ करना, बाहर कपड़े कैसे डालने, ऑल दैट वर्क ही स्टार्टेड डूइंग. बी इंडिपेंडेंट, देन ओनली आई विल सेंड यू टू अमेरिका, बिकॉज हियर you know you don't have any help. यहाँ खाना भी खुद बनाना है, यहाँ वैक्यूम क्लीनिंग भी करनी है, यहाँ सब कुछ करना है. So, ये जरूर सिखाएं बच्चों को, ये बहुत लाइफ लॉन्ग लेसन्स हैं. एंड नाउ एज पेरेंट्स वन रिक्वेस्ट आई विल डू टू यू. हम सभी के घरों में थैंकफुली मैं जानती हूँ कि आप जितने लोग बैठे हैं, हम सब ये ऑनलाइन टीचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं. हमारे पास ऐसे मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, या हमारे पास ऐसे लैपटॉप्स हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं. बट हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, ऐसे बच्चे हैं स्कूलों में जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. लुक बैक, अपने दिमाग में लाएं, कोई ऐसा सेल फोन घर की अलमारी में पड़ा तो नहीं हुआ है जो हमें लगा कि अब ये बेकार हो चुका है, चलो मैं एक नया ले लेती हूँ. मेरे पास है अभी, मैं सॉरी मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, तो मुझे बहुत फील हो रहा है, मेरे को देना चाहिए था. आई हैड एन iPhone 5S जो कि मैं दे सकती थी. गिव इट टू दैट चाइल्ड. बी अ हेल्पफुल चाइल्ड, बी अ हेल्पफुल पेरेंट. आप उस बच्चे को, बच्चे जानते हैं कि मेरे कौन से दोस्त के पास अभी बहुत मुश्किल हो रही है, सो गिव अवे लैपटॉप, कलेक्ट दोस काइंड ऑफ मोबाइल्स. आप 10 पेरेंट्स अभी अगर आप सुन रहे हैं या 20 सुन रहे हैं, तो 20 मोबाइल ना सही 15 मोबाइल तो हमें निकल सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ से, रिश्तेदारों के यहाँ से. कुछ ऐसे 8-10 लैपटॉप्स भी मिल सकते हैं. गिव देम टू द स्कूल. द स्कूल्स आर इन नीड ऑफ, बिकॉज देयर आर सच चिल्ड्रन, देयर आर सच फैमिलीज हु आर नीडिंग मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स. एंड ऑल्सो देयर आर फैमिलीज जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं. आई हैव अ टीचर, मैं अभी DAV से रिलीव हुई हूँ. आई एम नाउ नॉट विद देम. तो मेरे पास एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैम इतनी मुश्किल होती है. आई यूज माई लैपटॉप, माई हस्बैंड यूजेज हिज लैपटॉप, माई फोन इज विद माई यंगर डॉटर एंड माई हस्बैंड्स फोन इज विद माई स्मॉलर सन. तो चारों तो घर के इक्विपमेंट्स यूज हो गए. तो मैं आपका मैसेज कब पढ़ूं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करती थी. मैं आपका बात ही नहीं सुन पाती क्योंकि मैं तो लैपटॉप पे. देयर आर सच ट्रबल्स आल्सो. ट्राई एंड शेयर द एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स व्हिच आर लाइंग इनसाइड योर हाउसहोल्ड्स विद द स्कूल, ताकि या आप अपने बच्चों के वो फ्रेंड्स को अपने आप भी दे सकते हैं. लेट्स बी फ्रेंड्स. Thank you, ma'am. हिंदुस्तान एक ऐसा देश है. जी सर, जी सर. Ma'am, we have to close at 6 o'clock for some reason. Right, sir. Right. So right. please, So a lot I of things wind to off. say. So that's a please. small request which I can make to you, all of you. And thank you all
for listening, and thank you, sir, for giving me the opportunity. Thank you, ma'am. And generally we'll continue very long, but for some reason we have to close at 6 o'clock. Sir, please. Right. I'll share only one experience जो मैम अभी नरेट कर रही थी. Once we have given a letter to students at different levels with set of life skills और responsibility की जो बात कर रही थी कि एक responsibility हम फिक्स कर दें. एक पीटीएम में पेरेंट ने आके कहा कि साहब मेरा बच्चा जब से आपको लेटर पहुंचा है हमारे पास, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे जब स्कूटर खड़ा होता है ऑफिस जाने के लिए वो आके उसको साफ कर देता है. पहले मैं खुद करता था, लेकिन तब से वो बच्चा करने लगा है 7th क्लास का. तो सारे पेरेंट के सामने उन्होंने कहा कि साहब आपकी सारी एजुकेशन एक तरफ और जो प्लेजर मुझे मिलता है ये देखकर वो सारा मेरा मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं. तो ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की बात. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनपुट्स एंड गुड. तो थैंक यू पेरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग. अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो 21 नवंबर को हम एक बार फिर मिलेंगे. डॉक्टर अरुण प्रकाश you can conclude and we can close. Okay. General question which generally coming up, अगर स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे नहीं जाते तो ऑनलाइन क्लासेस साथ में चलेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा है. तो बहुत बार ये नहीं हो पाएगा जब सब आने लग जाएंगे. तो अगर कुछ लोग आते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर 90% लोग आने लग जाते हैं, 10% रह जाते हैं, या उसी स्थिति में स्कूल को चलाना दोनों करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So we'll request